آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واعظ کے عنوان وہ جو خدا کے طالب ہیں سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں اکثر بہت سی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسے مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود سے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے خدا کے طالب ہوتے ہیں۔ کتاب مقدس میں خدا کے کلام کے ذریعے آج ہم اپنے ایمان کے باوجودات کی تاریخ کا جائزہ لینے میں کچھ وقت گزارتے ہیں، جو ہمیشہ ہر مشکل صورتحال میں خدا کے طالب رہے اور بار بار فتح پائی۔ جیسا کہ ہم ان کی تاریخ سے سیکھ سکتے ہیں، جب ہمیں کسی مشکل صورتحال کا سامنا ہو تو ہمیں نہ صرف حل تلاش کرنا چاہیے بلکہ پہلے خدا کے طالب ہونا چاہیے۔ کتاب مقدس کی تعلیمات سے آئیں ہم جائزہ لیں کہ جب ہم خدا کے طالب ہوں تو وہاں حکمت، ایک حل اور ان کی مدد ہوگی۔ جب ہم خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں تو جب بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہو تو ہم خدا کے طالب ہوں گے۔ تاہم لوگوں کی اکثریت یہ سوچ کر انسانی طاقت پر زیادہ یقین رکھتی ہے کہ میں جانتا ہوں کسے مدد مانگنی ہے، یا یہ شخص دنیا میں طاقت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو انسانی طاقت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک ایسے طریقے شاید برے نہ ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اور میں ہمیشہ پہلے خدا کو ڈھونڈنے اور ان سے مدد مانگنے کے قابل ہوں گے۔ اسرائیل کے بادشاہوں کے زمانے میں بادشاہوں کو اپنے ملک پر حکومت کرتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج ہم بادشاہوں کی تاریخ سے خدا کا سبق سیکھنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ہم دوسرے سلاطین باب 1 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اغزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون دیوتا کے بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ اسرائیل ایسی سلطنت تھی جو قدیم زمانے سے خدا یہوہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اغزیہ بادشاہ نے خدا سے نہیں پوچھا کہ کیا وہ بیماری سے شفا یاب ہوگا، بلکہ اس کی بجائے اس نے کسی اور دیوتا سے مدد مانگی۔ آیت 3، لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریا کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا۔ آخر میں اغزیہ بادشاہ اپنے بستر سے نہ اٹھ سکا، وہ وہیں مر گیا۔ اس نے صرف 2 سال سلطنت کی تھی۔ وہ بدقسمت بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اغزیہ بادشاہ نے خدا سے مدد نہیں مانگی تھی جس پر اسرائیلی ایمان رکھتے تھے۔ اس نے کسی اور خدا سے مدد مانگنے کی احمقانہ راہ چنی کہ کیا وہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہوگا۔ اسرائیل 2 الگ الگ سلطنتوں یعنی شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا میں تقسیم تھا۔ وہ اصل میں ایک ہی سلطنت تھیں، کیا وہ نہیں تھیں؟ تاہم سلیمان بادشاہ کی موت کے بعد یہ 2 الگ الگ سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی، جنوب میں یہودا کی سلطنت اور شمال میں اسرائیل کی سلطنت۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد شمال اسرائیل کے معاملے میں کوئی بھی بادشاہ خدا پر صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تاہم جنوبی یہودا میں 40% بادشاہ خدا کی نظر میں صحیح راہ پر چلے تھے۔
बादशाहों की तारीख में से हम यहोशफत बादशाह पर एक नजर डालते हैं। यहोशफत बादशाह ने जनूबी यहूदा पर 25 वर्ष सल्तनत की। वो खुदा के लिए मुस्तैदी से काम करने वाला शख्स था। दूसरा तवारीख बाब 20 आयत 1। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमोन और उनके साथ बाज अमोनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। चूंकि बनी मोआब और बनी अमोन इसराइल के सरहद के करीब रहते थे, इसलिए वो हमेशा इसराइलियों के लिए खतरा थे। यहूदा की सल्तनत पर हमला करने की गर्ज से उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया। आयत 2। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हज़ासोन तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। जब यहोशफत बादशाह ने सुना कि वो उससे लड़ने आ रहे हैं, तो वो खुदा का तालिब हुआ। अहम नुक्ता आयत 12 में है, इसलिए हम आयत 12 की तरफ जाते हैं। हम आयत 12 देखते हैं। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बो के मुकाबिल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हो सकता है कि उसके पास और भी कई तरीके और हिकमत अमली हो, लेकिन पहले वो खुदा की मर्जी जानना चाहता था, इसलिए उसने खुदा से दुआ की और उनसे मदद मांगी कि हम उन लश्करों को कैसे रोक सकते हैं जो हमसे जंग करने आ रहे हैं। हम में उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं है, हम सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं। ऐ खुदा, बराह करम हमें इस जंग में फतह बख्शें। आयत 14। तब जुमात के बीच यहसीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन गीएल बिन मतनिया एक लावी पर, जो बनी आसफ में से था, खुदावंद की रूह नाजिल हुई, और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बो की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यरूईल के सामने वादे के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खुदा ने उनसे कहा कि सिर्फ उस निजात को देखें जो वो उन्हें देंगे। खुदा ने उनसे कहा, देखो मैं उन्हें क्या नतीजा दूंगा जो मेरे तालिब हैं और मुझ पर तवक्कुल करते हैं। हम आयत 20 की तरफ जाते हैं। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्त तको में निकल गए, और उनके चलते वक्त यहोशफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं, और उसने तकद्दुस के साथ उसकी हामद करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। आयत 22। जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमोन और मोआब और कोह शहर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी अमोन और मोआब कोह शहर के बाशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तैरते और हलाक करें। और जब वो शहर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। यहाँ कौन सी सल्तनतें इसराइल के खिलाफ मुतहिद हुई थीं? बनी अमोन, बनी मोआब और कोह शहर के लोग मुतहिद हुए थे। ताहम जब यहूदा में खुदा के लोग उठे
और गाने और हम करने लगे कि खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। तो खुदा के एक मौजूदाना काम अंजाम पाया। बनी अमोन और मोआब ने कोहे शहर के आदमियों पर हमला करना शुरू किया। जब बनी अमोन और मोआब कोहे शहर के लोगों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। जब जिदाउन के सिपाहियों ने मिद्यानी लश्कर पर हमला किया तो मिद्यानी एक दूसरे को तलवारों से मारने लगे और एक दूसरे को अपनी नेज़ों से छेड़ डाला। यहां भी ऐसा ही हुआ था। लिहाजा यहोशफ्त बादशाह की तारीख से हम तस्दीक कर सकते हैं कि हमें किसी दूसरे माबूदों पर इन्हिसार करने की बजाय हमेशा खुदा पर तवक्कुल करना चाहिए। इस वजह से जब हमें खुशखबरी की मुनादी के दौरान या ईमान की राह पर चलते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमें पहले खुदा के तालिब होना चाहिए। किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं। जैसा कि खुदा के पास हमेशा हमारे मसाइल के हल होते हैं, इसलिए जब हम पहले उनके तालिब हों तो वो हमें यूसुफ बादशाह की तरह पुरफजल नताज का तजुर्बा करने की इजाजत देते हैं। हम किताब मुक़द्दस से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ऐसे कई बादशाह थे, लेकिन हम हिजकिय्याह बादशाह की तारीख पर एक नजर डालते हैं। हम दूसरे सलातीन बाब 19 आयत 20 की तरफ जाते हैं। तब यशायाह बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, क्योंकि तूने शाह असूर सनहेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी सुन ली। जब हिजकिय्याह बादशाह को कोई मुश्किल पेश आती तो वो पूछता, ऐ खुदा, ये मसला खड़ा हुआ है, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? अपनी कौम पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह के तौर पर हिजकिय्याह के पास अपनी फौज को जमा करने की हिकमत थी और वो हालात से निपटने के मुख्तलिफ तरीके जानता था। इसके बावजूद उसने वो तरीके इस्तेमाल नहीं किए थे। वो मसाइल के हल के लिए खुदा का तालिब हुआ था। 21 आयत से बादशाहों की दानाई का जायजा लेना जारी रखते हैं। इसलिए खुदावन ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कुंवारी दुख्तर सिय्योन ने तुझको हकीर जाना और तेरा मजाका उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के कुदूस के खिलाफ। शाह असूर सनहेरब ने यहूदा के लोगों के पास कासिद भेजे कि वो खुदा और हिजकिय्याह बादशाह की तौहीन और तकफीर करें। ये सुनकर हिजकिय्याह बादशाह को बहुत दुख हुआ। आयत 23, तूने अपने खादमों के जरिए से खुदावंद की तौहीन की और कहा कि मैं अपने बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वसी हिस्सों तक चढ़ आया हूं और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा और मैं उसके चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने जगह जगह का पानी खोद खोद कर पिया है और मैं अपने पांव के तलवे से मिस्र की सब नदियां सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये क्यों ही मुद्दत हुई और मैंने कदीम अयाम से ठहरा दिया था? अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो। जब सनहेरब एक बड़े लश्कर के साथ यहूदा पर चढ़ाई कर रहा था तो हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से मदद मांगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो खुद इन तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकता। ये वो मंजर है जहां खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को तसल्ली दी थी। आयत 30 में ये कहा गया है कि और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कोहे सय्योन से निकलेंगे। रबुल फाज की गयोरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपड़ लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा ताकि इसे बचा लूं। सो उसी रात खुदावंद के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले और सुबह को जब लोग सवेरे उठे
तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाही असुर सन्हेरिब वहां से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलिक और शराजर ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए और उसका बेटा असरहदून उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदा की मदद से पहले सूरत-ए-हाल वाकई तशवीशनाक थी। असुर के बादशाह ने जब शाकी नामी अपने सिपा सलार और अपनी फौज को यहूदा की सल्तनत को डराने और वहां खौफ फैलाने के लिए भेजा, लेकिन नतीजा ये निकला कि खुदा ने उसे तीर चलाए बगैर अपने मुल्क में वापस भेज दिया। जब शाही असुर वापस अपने मुल्क चला गया तो वो मारा गया। ये मंजर दूसरे तवारीख की किताब में मजीद तफसील से बयान किया गया है। हम दूसरा तवारीख बाब 30 की तरफ जाते हैं। दूसरा तवारीख बाब 30 आयत 1। और हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा को कहला भेजा और इफ्राइम और मुनस्सी के पास भी खत लिख भेजे कि वो खुदावंद के घर में यरूशलेम को खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फसा करने को आए। यूं हिजकिय्याह बादशाह ने पुरफजल तौर पर ईद फसा मनाई। वो उन बादशाहों में से एक था जिसने अपने लोगों को सिखाया था कि हमें अपने सारे दिल और सारी अकल से खुदा के तालिब होना है, तब हम खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। दूसरा तवारीख बाब 30 में उसने पुरफजल तौर पर अपने लोगों के साथ ईद फसा मनाई और बाब 31 में उसने सब बुतों को ढा दिया। आइए बाब 31 आयत 20 देखते हैं। सो हिजकिय्याह ने सारे यहूदा में ऐसा ही किया और जो कुछ खुदावंद उसके खुदा की नजर में भला और रास्त और हक था वही किया और खुदा के घर की खिदमत और शरीयत और अहकाम के एतबार से जिस जिस काम को उसने क्या किया था उसने हमेशा अपने खुदा का तालिब होने के लिए किया, उसे अपने सारे दिल से किया और कामयाब हुआ। हिजकिय्याह ने जो भी किया खुदा ने उसे बरकत दी, इसलिए उसकी सल्तनत तरक्की करती गई और खुशहाल हुई। यही वजह है कि उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह ने ज्यादा खुशहाली हासिल की थी। किताब मुक़द्दस के अंदराज के मुताबिक उसके लिए सब कुछ ठीक रहा, चाहे उसने कुछ भी किया हो। ताहम इसी दौरान शाही असुर सन्हेरिब ने यहूदा पर चढ़ाई की, जैसा कि दूसरे सलातीन बाब 19 में देखा गया है। आइए हम बाब 32 आयत 1 की तरफ जाते हैं। इन बातों और इस ईमानदारी के बाद शाही असुर सन्हेरिब चढ़ आया और यहूदा में दाखिल हुआ और फसीलदार शहरों के मुकाबिल खैमाजन हुआ और उनको अपने कब्जे में लाना चाहा। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सन्हेरिब आया है और उसका इरादा है कि यरूशलेम से लड़े, तो उसने अपने सरदारों और बहादुरों के साथ मशवरत की कि उन चश्मों के पानी को जो शहर से बाहर थे बंद कर दे, और उन्होंने उसकी मदद की। जैसे कि दूसरे सलातीन बाब 19 में देखा गया है, उसने पहले खुदा से दुआ की और अपने अहलकारों के साथ मिलकर उनके दुश्मनों के खिलाफ दिफा की तैयारी की। आइए देखते हैं कि हिजकिय्याह ने उन लोगों में कैसे ईमान पैदा किया जो उसके साथ थे। आयत 7। हिम्मत बांधो और हौसला रखो और असुर के बादशाह और उसके साथ के सारे अंबों के सबब से ना डरो, ना ही रासान हो, क्योंकि वो जो हमारे साथ है उससे बड़ा है जो उसके साथ है। उसके साथ बशर का हाथ मतलब शाह असुर और उसका बड़ा लश्कर है, यानी सिर्फ उनके जिस्मानी हाथ उनके साथ थे, लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है कि हमारी मदद करे और हमारी लड़ाइयां लड़े। सो लोगों ने शाही यहूदा हिजकिय्याह की बातों पर तकिया किया। आयत 9 से जारी रखते हैं। उसके बाद शाह असुर सन्हेरिब ने, जो अपने सारे लश्कर के साथ लकीस के मुकाबले पड़ा था, अपने नौकर यरूशलेम को शाह यहूदा हिजकिय्याह के पास और तमाम यहूदा के पास जो यरूशलेम में थे ये कहने को भेजे कि शाह असुर सन्हेरिब यूं फरमाता है कि तुम्हारा किस पर भरोसा है कि तुम यरूशलेम में मुहासरे को झेल रहे हो।
کیا ہزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تم کو نہیں بہکا رہا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ ربشاکے کے شاہ اسور سنہرب کے کہنے پر لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے میں مصروف تھا۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جہاں لوگ خوف سے کانپ رہے تھے اور مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ بہرحال آئیں 20 آیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کیسے نمٹے تھے۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یسایہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف چلائے، اور خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سرماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ بس وہ کیسے اپنے ملک کو لوٹا؟ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا۔ شاہ اسور نے اپنی طاقت پر ناز کیا اور یہودا کے لوگوں کو ڈرایا اور اپنے سپہ سالار ربشاکے کو بھیجا کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خدا اور حزقیہ بادشاہ کی توہین کرے۔ تاہم خدا نے ایک ہی رات میں تمام 1,85,000 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور شاہ اسور شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا۔ یہ لفظ دوسرے سلاطین باب 19 میں نہیں ملتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا تھا، بس وہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک کو لوٹا، اور جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں گیا تو انہی نے جو اس کے صلب سے نکلے تھے اسے وہیں تلوار سے قتل کیا۔ یوں خداوند نے حزقیہ کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنہرب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہر طرف خدا نے کیا کیا تھا؟ ان کی رہنمائی کی۔ خدا نے ہمیشہ ان کی رہنمائی کی تھی۔ یہ وہ ہے جس میں حزقیہ بادشاہ اچھا تھا۔ وہ صحیح طور پر سچائی کو سمجھا تھا۔ جب بھی اسے کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ ہمیشہ خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے پہلے خدا سے پوچھا اور پھر اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ اس وقت اسور کی سلطنت سب سے طاقتور تھی۔ اگرچہ اس کے 1,85,000 سپاہی تھے، پر خدا نے فرشتے کو بھیجا اور ایک ہی رات میں ان سب کو ہلاک کر دیا۔ جب ہمیں ایسے مشکل حالات کا سامنا ہو جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ہماری اختیار سے باہر ہے اور ہماری اپنی حکمت کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں جسمانی راستہ تلاش کرنے کے بجائے پہلے خدا کے طالب ہونا چاہیے۔ خدا کے سب فرزندوں کا ایمان حزقیہ کے مانند ہونا چاہیے۔ ہم آیت 22 سے جاری رکھتے ہیں۔ یوں خداوند نے حزقیہ کو اور یروشلم کے باشندوں کو شاہ اسور سنہرب کے ہاتھ سے اور سبوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہر طرف ان کی رہنمائی کی، اور بہت لوگ یروشلم میں خداوند کے لیے ہدیے اور شاہ یہودا حزقیہ کے لیے قیمتی چیزیں لائے، یہاں تک کہ وہ اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں کیا ہو گیا؟ ممتاز ہو گیا۔ وہ جو خدا کے طالب ہوتے اور ان پر توکل کرتے ہیں انہیں سب قومیں عزت دیتی ہیں۔ خدا انہیں سب قوموں میں سرفراز کرتے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ نے جو بھی کیا خدا نے اسے برکت دی اور اس پر بے انتہا فضل نازل کیا۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ حزقیہ نے عید فصح منائی، تمام بتوں کو ڈھا دیا اور اسرائیلیوں کے ذہنوں کو جو دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے خدا کی طرف پھیرنے کی کوشش کی۔ جب ہم اس کی کاوشوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے نتیجے میں یہودا کو بہت برکت ملی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ ہم بھی ہمیشہ خدا کی طرف کھڑے ہوں گے اور پہلے خدا کے طالب ہوں گے، خدا سے مشورہ کریں گے اور پھر اس زمانے میں آگے بڑھیں گے۔ اگر لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو پہلے خدا کا طالب ہے اور دوسرا وہ جو اپنے طور پر حل ڈھونڈتا ہے، تو ہمارا تعلق کس گروہ سے ہونا چاہیے؟ ہمیں پہلے خدا کے طالب ہونا چاہیے۔ اے خدا، مجھ میں حکمت اور ایمان کی کمی ہے اور میں خامیوں سے بھرا ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم میری مدد کریں تاکہ میں دوسروں کی طاقت پر انحصار نہ کروں بلکہ آپ کے لوگوں میں سے بن جاؤں جو ہمیشہ آپ کی طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔
जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर हालात बेहतर होंगे। जैसे कि तारीख में हिजकिया बादशाह के ज़माने में यहूदा की सल्तनत बहुत ताकतवर हो गई थी, इसी तरह मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। चाहे सूरत हाल कितनी ही मायूस कुन हो, खुदा हमेशा उन्हें जवाब देते हैं जो उनके तालिब होते हैं। हम पहले सामुएल बाब 17 की तरफ जाते हैं। आयत 1 से देखते हैं। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए और शोका और रजीका के दरमियान अफसद मीम में खैमाजन हुए। और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफर आएगी। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जुलियत था। उसका कद 6 हाथ और एक बालिश था और उसके सर पर पित्तल का खोद था और वो पित्तल ही की जीरा पहने हुए था जो तौल में 5000 पित्तल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पित्तल के 2 साग पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पित्तल की बर्छी थी। आप सब, क्या जाति जुलियत बड़ा देव नहीं था? ये बड़ा देव हर रोज खुदा और उनके लश्कर की तौहीन करता था, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। इसकी वजह यह थी कि कोई मुखालिफ काबिल नहीं था। जाति जुलियत की बहादुरी के सामने सब कांपते थे। हत्ता कि साउल बादशाह भी जाति जुलियत के सामने कुछ ना था। वो नहीं जानते थे कि क्या करें। उस वक्त दाऊद नामी एक नौजवान जाहिर हुआ जो खुदा से मसा किया गया था। हम पहले सामुएल बाब 17 आयत 45 से देखते हैं। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो हर जमाने में फतह पाते हैं। दाऊद जिस्मानी लिहाज से इस लायक नहीं था कि उसका मुआवजा जाति जुलियत से किया जाता। बहुत से लोगों ने सोचा कि लड़ाई जाति जुलियत जीतेगा, ताहम उनकी लड़ाई का नतीजा लोगों की तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक बिल्कुल गैर मुतवक्का वाक़या रूनुमा हुआ था। दाऊद ने जाति जुलियत को एक पत्थर से शिकस्त दी थी। दाऊद ने ऐसा शानदार काम किया था। दाऊद ऐसा काम कैसे कर सकता था? वो खुदावंद कादर मुतल्लिक के नाम से आया था। हम पढ़ना जारी रखते हैं। आयत 46 में ये लिखा है कि और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। और ये सारी जुमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। इस किस्म के ईमान के साथ दाऊद जाति जुलियत के खिलाफ लड़ने गया। वो कभी अपनी काबिलियत, हुनर या हथियार की बुनियाद पर जंग में नहीं गया था। ये सब ऐसे नाकिस हालात थे जो जाति जुलियत को शिकस्त देने के लिए गैर मौजूद थे। इसके बावजूद खुदा दाऊद के साथ थे, जो सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करते हुए आगे बढ़ा और उसे फतह बख्शी। आयत 48। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे
वो जो हमेशा खुदा के तालिब हैं। आज मुझे यकीन है कि माजी में इन बादशाहों की तारीख से एक सबक है जिसे हम सबको सीखने की जरूरत है। जब जाति जुलियत नामी दुश्मन ने खुदा की तौहीन की और इस्राएली लश्कर को लानतान किया तो सारा लश्कर यहां तक कि तजुर्बाकार सिपाही भी कांप उठे। अगरचे उनका दुश्मन उनके खुदा की तकफीर करता रहा, वो खामोश रहे। ताहम दाऊद ने कहा, क्या मैं सिर्फ खड़ा रहूं जबकि वो खुदा की तौहीन कर रहा है? जब उसने कहा मैं जाकर उसका मुकाबला करूंगा तो साउल बादशाह ने उसे मनाने की कोशिश की। जाति जुलियत अपनी जवानी से ही जंगजू के तौर पर पला बड़ा है। क्या तू सिर्फ चरवाहा लड़का नहीं है? वो सिपाही के तौर पर भर्ती होने का भी अहल नहीं था क्योंकि वो एक छोटा लड़का था जो भेड़ें चराता था। जब साउल ने कहा तू जाति जुलियत के खिलाफ नहीं जा सकता तो दाऊद ने हिम्मत पैदा की और कहा मैं अपने बाप की भेड़ चराता हूं। जब एक शेर आया और भेड़ को ले गया तो मैंने उसके बालों से पकड़कर उसे मारा और बड़े को बचा लिया। खुदा ने हमेशा मेरी हिफाजत की, उसने हमेशा फतह पाने में मेरी मदद की। दाऊद की पूरे एतमाद बातें सुनकर साउल बादशाह के पास कोई चारा नहीं था। उसने दाऊद को अपना ज़िरा पहनाया और जंग में जाने दिया। ताहम उसका ज़िरा नागवार था, इसलिए दाऊद ने उसे उतारकर अपने आम कपड़े पहन लिए। जिस्मानी माहौल में दाऊद के लिए गालिब बनना नामुमकिन लगता था। ताहम जो लोग हमेशा खुदा पर तवक्कुल करते और उनके तालिब होते हैं, खुदा हमेशा उनके साथ होते हैं। चूंकि खुदा हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद होते हैं, इसलिए अगर जाति जुलियत से 10 या 100 गुना बड़ा दुश्मन उनके खिलाफ आ जाए तो ये एक ऐसी जंग होगी जिसे वो कभी हार नहीं सकते। खुशखबरी को अंजाम देने के दौरान हमें बहुत सी जाती मुश्किलात का सामना होगा और कलीसिया को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये सोचते हुए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि खुद कैसे इसका हल निकाला जाए। इसके बजाय हमें किसके तालिब होना चाहिए? हमें हमेशा खुदा के तालिब होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मत्ती 28 बाब में खुदा ने वादा किया था कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो कब तक हमारे साथ होंगे? उन्होंने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दाऊद ने खुदा से दुआ की होगी, ऐ खुदा आप मेरे साथ हैं, सही? मैं आज जाति जुलियत से लड़ने जा रहा हूं, बराह करे मेरी मदद करें। क्या इसीलिए उसने चंद पत्थरों के साथ जाति जुलियत का मुकाबला नहीं किया था? वो तलवार या भाला लेकर नहीं गया था। इसी तरह खुदा उनके साथ होंगे जो उनके तालिब हैं और उन्हें फतह बख्शेंगे। हिजकिय्याह बादशाह और यहोशप्पत बादशाह की तारीख में भी ऐसा ही था। खुदा ने यहोशप्पत बादशाह, हिजकिय्याह बादशाह और दाऊद को जाति जुलियत के खिलाफ जंग में फतह बख्शी थी। खुदा की फतूहात की तमाम कहानियां हकीकी वाकयात हैं जो माजी में रूनुमा हुए थे। ये अफसाने नहीं हैं। उस वक्त का खुदा और आज का खुदा दोनों एक ही खुदा हैं। वो आखिर तक हमारी मदद करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा आज यहां है और वो हमेशा खुशखबरी के मैदान में मौजूद हैं। खुदा हमारे घरों और हमारे काम की जगहों पर हमारे साथ हैं। हर वक्त खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए हमें सोचना चाहिए कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मैं खुद से ये करने के लिए बहुत कमजोर हूं। ऐ खुदा बराह करम मेरी मदद करें। अगर आप मेरी मदद करें तो मुझे यकीन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप खुदा से मदद के लिए उनसे दुआ करें तो उन मुश्किल हालात का क्या होगा जिनका हमें सामना होता है, ये आसानी से हल हो जाएंगे जैसे ये कुछ भी नहीं थे। जब यरीहो फतह हुआ तब भी ऐसा ही था। जब जिदाओं ने 300 आदमियों के साथ 1,35,000 मिद्यानों को शिकस्त दी तब भी ऐसा ही था। जब बहरे कुलजम तकसीम हुआ तब भी ऐसा ही था।
खुदा हमेशा उनके लिए राह खोलते हैं जो उनके तालिब होते हैं। हमें ये सोचकर आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि ये सिर्फ बादशाहों के ज़माने में होता था और हमारे ज़माने में नहीं हो सकता। माजी के तमाम अक्स इस ज़माने की खातिर मौजूद हैं। इस उम्मीद से कि हम सब इस ज़माने में हमेशा खुदा पर तवक्कुल करेंगे और उनके तालिब रहेंगे। मैं आज का आवाज़ ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।